শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 94 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 14.94 অনওয়ার্ডস। ইয়েস, পঙ্কজ রাজেশ বাবু, 94 নম্বর শ্লোক। কতদিনে মিশ্রপুত্রের হাতে খড়ি দিল, কতদিনে মিশ্রপুত্রের হাতে খড়ি দিল, অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল, অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল। তার কয়েকদিন পর জগন্নাথ মিশ্র তার পুত্রের হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। ये हाथे खोरी देवा, ये भी जितना दूर मेरे को याद है 16 संस्कार में एक संस्कार आता है, हाथे खोरी मैंने कुछ उसका नाम है, हाथे खोरी संस्कार, आई डोंट नो, होगा कुछ नाम है। की नाम? प्रभु विद्या पाठी से। विद्या पाठी। पाठी पाठी जो पाठी। मतलब पाठी पे लिखाता है ना, उसी पे अच्छा, भगवान संस्कार का नाम है विद्या पाठी संस्कार। ओके। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সমস্ত অক্ষর দ্বাদশ ফলা শিখে ফেলেছিলেন। अभी साक्षात भगवान है। দ্বাদশ ফলা হচ্ছে রেফ, মূর্ধন্য ন, দান্তব্য ন, म, ज, र, ल, ब, री, री, ली और ली, ये 12 हो गया। হাতে খড়ি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সূচনার অনুষ্ঠান। 4-5 বছর বয়সে বিষ্ণুকে পুজো করার মাধ্যমে শুভ দিনে শিশুর বিদ্যারম্ভ হয়। বিদ্যারম্ভ সংস্কার শায়দ এসে কুছ है নাম। তারপর শিক্ষক শিশুকে একটি চক, পেন্সিল দেন এবং তার হাত ধরে মেঝেতে অ, আ, ই প্রভৃতি লিখতে শেখান। শিশু যখন একটু লিখতে শেখে তখন তাকে একটি স্লেট দেওয়া হয় এবং যুক্ত অক্ষর বা ফলা শিখতে শেখানো হয়। 95 নম্বর শ্লোক। বাল্যলীলা সূত্রে কৈল অনুক্রম, বাল্যলীলা সূত্রে কৈল অনুক্রম, ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন, ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কইল, অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল, পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল, পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারো শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জগাস, চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। ক্রম অনুসারে সূত্রের আকারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণন করা হলো। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পূর্বেই তার চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এই সমস্ত লীলার বর্ণনা করেছেন। तो जैसे मैंने आगे भी बताया था, ये ग्रंथ बाल्य लीला के लिए नहीं है, चैतन्य चरितामृत। ये अंत लीला और मध्य लीला उसमें ज्यादा फोकस किया है। बाल्य लीला सुनना है चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत, उसमें डिटेल दिया हुआ है। তাই আমি এই সমস্ত লীলা সংক্ষেপে সূত্রের আকারে লিখলাম। পুনরুক্তি ভয়ে আমি বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করলাম না। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা 14 পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। 15 পরিচ্ছেদ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পৌগণ্ড লীলা। পৌগণ্ড লীলা সুদামে বল্লভী মাতা वो
उम्र के हिसाब से थोड़ा क्लासिफाई कर दीजिए। बाल लीला कब तक, कितना उम्र से कितना तक? 1 से 5, फिर 5 से 10 पौगंड लीला। 6 से 10, हाँ फिर 11 से 15 या 16 किशोर अवस्था। 11 से 14 शायद ना? 15 15 15 15 16 ऐसे करके। पौगंड और 6 फिर साल का होता है। और उसके बाद 16 से मतलब ये यौवन लीला। यौवन लीला। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত সার। এই পরিচ্ছেদে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে মহাপ্রভু ব্যাকরণ পড়েন এবং তখন তিনি ব্যাকরণের टीका রচনায় प्रवीणता लाभ करें। गंगादास, गंगादास याद, नाम सुनने से क्या क्या याद आता है आप लोगों को? देखते सुनते हैं, ठीक है, बताइए। गूगल गुरु हाथ थे ना उनके, महाप्रभु ओके, के और गुरु थे। महाप्रभु के गुरुदेव है। और बस उतना ही याद आता है। और कोई भी कुछ याद आ रहा है गंगादास पंडित के बारे में? तो राधा रानी के थे, राधा रानी के नहीं नहीं उनका नहीं नहीं नहीं, संदीपुनी मुनि के अवतार है। गंगादास पंडित को एक बार जब यवन लोग दौड़ा गए, मतलब उनके पीछे हमला करने के लिए जा गए थे, तो वो गंगा किनारे गए अपने परिवार के साथ में। ये निश्चय किया कि या तो मतलब उस पार चले जाएंगे, यदि यवन लोग के हाथ में आ गए तो गंगा में डूब जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में नहीं आएंगे। तो उस समय वहाँ कोई नौका नहीं था। फिर जैसे ही मतलब तो महाप्रभु खुद वहाँ पे नाविक के रूप में नौका लेके आए थे। हाँ, ये very nice. उन्होंने प्रकट किया था महाप्रकाश लीला में गंगादास को कि आप जब उस समय परिवार के साथ वहाँ पे थे तब मैं आपके भी नौका लेके आया। तो ये सब घटनाएं नाम सुनने से याद आ जाना चाहिए। गंगादास, वो महाप्रकाश लीला एक्सेट्रा। और व्याकरण टीचर थे आगे। यस, हिरण में गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुरोध करें। हाँ, गंगादास पंडित का जो घर था मायापुर से बेलपुकुर जाना का रास्ता में पड़ता था। अच्छा, हाँ, और विद्यानगर में उनका टोल था जो हाँ, हम लोग सब परिक्रमा जाते हैं। yes. और एक दिन क्या हुआ था, उनमें गंगादास पंडित नदी में स्नान करते थे। उस टाइम में चैतन्य महाप्रभु को बोले जे तुम थोड़ा मेरा कपड़ा लेके आओ। तो वो जब नदी में चले तो स्वर्ण कमल का ऊपर में पाँव दे के गिए थे। ऐसे घटना घटा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये सब गंगादास पंडित के बारे में। आगे क्या लिखा है? हाँ बोलून सुभाष बाबू। হরে কৃষ্ণ বাবু, ধন্যবাদ তোমার। ধন্যবাদ। আর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের সামনে আমাদের এই মহাপ্রভু যে পেন দিয়ে যে গাছ রেখেছিল, সেই কলম গাছটা সেই তার টোলের সামনে রয়েছে বিদ্যানগরে। আচ্ছা, তো কি লীলা হয়েছিল? টোলের সামনে কি আছে? মহাপ্রভু একদিন কি করেছিলেন? তার লেখার কলমটা ওখানে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল, সেখান থেকে একটা গাছ হয়েছিল। সেই গাছটার নাম কলম গাছ, মানে পেন গাছ। সেটা আমরা দেখে নিলাম। হ্যাঁ, সেটা এবার দেখে নিলাম আমরা। ইয়েস ইয়েস, কি 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 গাছ ওটা? ঠিক মানে কি গাছ? কি ফুলের গাছ না ফলের গাছ? কি কি ফলেরই গাছ, কি ফলেরই গাছ হয়েছিল, কিন্তু গাছটাতে লেখা আছে কলম গাছ, পেন গাছ। এটা আমাদের ওখানে তখন बललेन महाप्रभु कलम माने पेन जो है उन्होंने उधर गाप दिया था, तो उसपे उससे गाछ हो गया। वाह, वेरी नाइस। तो ये सब वो गंगादास पंडित के टोल के सामने। फिर आगे लिखा है, তিনি মাকে মানে সচি মাকে एकादशी दिन अन्न खेते निषेध करते, क्योंकि सची माता आगे एकादशी पालन नहीं करती थी। विश्वरूप सन्यास ग्रहण करे ताके सन्यास ग्रहण करते आह्वान करें। हरे कृष्ण, ठीक है। विश्वरूप सन्यास ग्रहण करे ताके ताके माने निमाइके सन्यास ग्रहण करते आह्वान करें एवं तिनी ता ना शुने पितामातार सेवा करार इच्छा प्रकाश करें। ना ना, আমি আমার মা বাবাকে सेवा করব, तुम भी सन्यास ले लिया, मैं भी सन्यास ले लूंगा, तो इन लोग को कौन देखेगा?
ताते विश्वरूप ताके पुनराय गृहे पाठिए दें। ठीक है, तुम फिर वापस चले जाओ। एरूप एकटी आकांक्षियाके बोलें। इंग्लिश में क्या लिखा है? आकांक्षी माने एस्पायरिंग। जी आख्यायिका। आख्यायिका, ओके। इंग्लिश में क्या लिखा है? आख्यायिका माने रिस्पॉन्सिबल। हिंदी में क्या लिखा है? उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्हें वापस घर भेज दिया गया। जगन्नाथ मिश्र के देहांत के बाद उन्होंने वल्लभाचार्य। अच्छा, फिर लिखा नहीं उसके बारे में कुछ। अच्छा, হতে পারে যে এটা এইরকম একটা গল্প আছে, আখ্যায়িকা মানে কোনো নাম দেওয়া হয়েছে। एरूप एकटी आख्यायिका बोलें। इंग्लिश पढ़ने से कोई इंग्लिश वाले नहीं है क्या? ओके, आगे लिखा है এই পরিচ্ছেদে জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক মানে उनका मृत्यु, বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর পানি গ্রহণ আদি বিবরণ সূত্র রূপে বর্ণিত হয়েছে। पानी ग्रहण में विवाह, पहला विवाह महाप्रभु का वल्लभाचार्य के करना। ये वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य ने, दूसरा कोई है। सुधामय वल्लभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा है जो आख्यायिका आप पूछ रहे हैं, एक कहानी सुनाई। अच्छा, जैसे पहला श्लोक संस्कृत होता है, ये कविराज गोस्वामी द्वारा लिखे थे। कहीं से कविराज गोस्वामी कोट नहीं कर रहा है। टेल, अच्छा, कहानी, ओके, आख्यायिका। कुमोनांग सुमोनस्तं हि कुमन सुमनत्सं हि जाति जस्य पदाज्जयो जाति जस्य पदाज्जय सुमनः पर्णमात्रेण सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। तम चैतन्य प्रभुं भजे। चार पाद पद में সুমন, চামেলি বা মালতী ফুল অর্পণ করা মাত্র জড় ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ ঘোর বিষয়ীয় ভগবত ভক্তে পরিণত হয়, সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি ভজনা করি। জয় জয় শ্রী চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र। পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন, পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন। পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন। পৌগণ্ড বয়সে প্রভু মুখ্য অধ্যয়ন। আমি এখন সূত্রের আকারে, সূত্র মানে ব্রিফলি পৌগণ্ড লীলা 5 থেকে 10 বছর পর্যন্ত, আচ্ছা 5 থেকে 10 বর্ণনা করব। এই বয়সে প্রভুর মুখ্য কার্যকলাপ ছিল অধ্যয়ন। अभी अध्ययन माने संस्कृत अध्ययन, ग्रामर अध्ययन। ये भी कविराज गोस्वामी का श्लोक है। पौगंड लीला चैतन्य, पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण साथी सुविस्तता, कृष्ण साथी सुविस्तता। विद्यारंभ मुखपानी विद्यारंभ मुखपानी, ग्रहणास्त मनोहर, ग्रहणास्त मनोहर। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পৌগণ্ড লীলা অতি বিস্তৃত। তার বিদ্যারম্ভ থেকে এই লীলার শুরু এবং তার অতি মনোহর पानी ग्रहण लीलाएं तार शेष। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कितना यंग एज में महाप्रभु का विवाह हो गया, क्योंकि पौगंड तो 5 से 10 साल था, उसी में उनका विवाह भी हो गया। गंगादास पंडित स्थाने पढ़ेन व्याकरण, गंगादास पंडित स्थाने पढ़ेन व्याकरण। श्रवण मात्रे कंठे कइल सूत्र वृत्तिगण, श्रवण मात्रे कंठे कइल सूत्र वृत्तिगण। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পড়েছিলেন,
ওই ব্যাকরণ মানে গ্রামার, ব্যাকরণ মানে বিনা কারণ নেই। তখন শোনা মাত্রে তিনি ব্যাকরণের সূত্র বৃত্তি সমূহ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। হরি বল। सुना मात्र मैंने कितना श्रुति धरता है ना, इससे व्यक्ति को श्रुति दे, जिनका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर বলেছেন যে মহাপ্রভু প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শন নামক দুইজন শিক্ষকের কাছ থেকে সামান্য বিদ্যা উপার্জন করেন। ওকে, ফার্স্ট টিচার। সামান্য বিদ্যা মানে জেনারেল স্টাডিজ, একদম এবিসিডি এসে মানে আই ডোন্ট নো, একদম। তারপর একটু বড় হলে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পড়েন। সংস্কৃত ভাষা শিখতে হলে প্রথমে ব্যাকরণ শিখতেই 12 বছর সময় লাগে। ও, इतना टाइम लग जाता है संस्कृत सीखने में। संस्कृत का तो शशि माता जी थी, अभी तो है नहीं। और कोई संस्कृत एकदम अच्छा से सीखा है बचपन में? कोई है इधर उपस्थित ভালো করে সংস্কৃত শিখেছেন ছোটবেলায়? কেউ আছেন? কেউ নেই। ওকে, সংস্কৃত ভাষা শিখতে হলে প্রথমে ব্যাকরণ শিখতেই 12 বছর সময় লাগে। ও মাই গুডনেস। যখন খুব ভালোভাবে ব্যাকরণ শেখা হয়ে যায় তখন অতি সহজে সংস্কৃত শাস্ত্র অথবা সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কেননা সংস্কৃত ব্যাকরণ হচ্ছে সংস্কৃত অধ্যয়নের দ্বার স্বরূপ। মানে संस्कृत व्याकरण सीखने से संस्कृत भाषा आराम से सीख लेंगे, बेस है। अच्छा, आपके था क्या संस्कृत? ये क्या गेटवे टू संस्कृत, ये ऐसे बोल रहे हैं? इजी लर्निंग। अगर व्याकरण अच्छा से सीख ले तो फटाफट आप संस्कृत भी सीख सकते हैं। ओके, राधिका माता जी को आती थी संस्कृत? नहीं, आप सीखे थे। आप सीखे थे? अच्छा, हरि बोल। যে 2 বছর করে আমাদের ছিল সংস্কৃত। হ্যাঁ, এখানে তো বলছে 12 বছর অবধি তো শুধু গ্রামারই শেখায়। হ্যাঁ, ওটা একদম যারা সংস্কৃতের পণ্ডিত তাদের তো শিখতে সংস্কৃত। কলকাতা में भी है ना संस्कृत कॉलेज? এই গ্রামার অন্যান্য গ্রামার থেকে অনেক বেশি। 7 तक আমি পড়েছি সংস্কৃত। आप भी पढ़े हैं? वाह, उसी रतन चने। यस, सुधामय वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरी कजन जिसके यहाँ भी शादी में गए थे वो बीएचयू में लेक्चरर है संस्कृत की, मतलब आचार्य पद पे है। अरे बाबा, अरे यस, नरेंद्र सर्व चैतन्य प्रभु। हाँ प्रभु, पेड़ वाला जो जहाँ कॉलम वाला नहीं है उसको ग्रुप में दे दिया। तो हम लोग को उड़ीसा में एक ग्राम है, वो पूरा संस्कृति बात, दुकान बाजार पूरा सब, अच्छा, बातचीत सब संस्कृत में। अच्छा, बातचीत भी संस्कृत में? पूरा हाँ, दुकान बाजार जितना है ग्राम बाजार सब। अच्छा, देखिए वो श्रीवास प्रभु जो बता रहे थे ना, सचिन सुधार श्रीवास प्रभु, जो पेन से वृक्ष बन गया, हाँ, ये वही पेन है। अभी देखिए पेन, ये गंगादास पंडित के टोल के बाहर है। परिक्रमा सब देखिए, भक्त लोग गए हैं, बस पेड़ को टच कर रहा है, आशीर्वाद ले रहे हैं पेड़ से। ये महाप्रभु का पेन से, कलम से ये वृक्ष बन गया, दिखाई दे रहा है? थैंक यू वेरी मच। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? अल्पकाले হইল পঞ্জি টিকাতে প্রবীণ। অল্পকালে হইল পঞ্জি টিকাতে প্রবীণ। চিরকালের পড়ুয়া যিনি হইয়া নবীন। চিরকালে পড়ুয়া যিনি হইয়া নবীন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পঞ্জি টিকা নামক ব্যাকরণের টিকা বিশ্লেষণে এত পারদর্শিতা লাভ করলেন যে তিনি অন্য সমস্ত প্রবীণ ছাত্রদের পর্যন্ত পরাস্ত করলেন। जो सीनियर स्टूडेंट्स को भी हरा दिया इतना। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে ব্যাকরণের পঞ্জি টিকা নামক একটি প্রসিদ্ধ টিকা ছিল। মহাপ্রভু তা অত্যন্ত সরলভাবে বিশ্লেষণ করে টিপ্পনী প্রস্তুত করেছিলেন। অধ্যয়ন লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন। অধ্যয়ন লীলা প্রভু দাস বৃন্দাবন। চৈতন্য মঙ্গলে কইল বিস্তারি বর্ণন। चैतन्य मंगले कैलो विस्तारी वर्णन। तो इससे समझ क्या लेना चाहिए कि कविराज चैतन्य भागवत
चैतन्य कविराज गोस्वामी उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। अभी देखिए तुरंत छोड़ दिया, अभी पूरा छोड़ दिया पढ़ाई वाला लीला, अभी लेकिन दूसरा ये लीला। चैतन्य भागवत हो गया बाद में नाम ना। यस, तो अभी वो पूरा लीला छोड़ दिया, अभी दूसरा लीला में आ जा रहा है। देखिए पूरा बड़ा वाला चैप्टर छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी दूसरा बुक में है। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देहो एक दान, प्रभु कहे माता मोरे देहो एक दान, माता बोले ताई দিব যা তুমি মাগিবে, माता बोले ताई দিব যা তুমি মাগিবে, প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে, প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে। তার মা উত্তর দিয়েছিলেন তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব। তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন দয়া করে একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করবে না। श्री चैतन्य महाप्रभु तार लीला विलासेर, देखिए इससे हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं ना, महाप्रभु का प्रिय कौन है? जो व्यक्ति एकादशी पालन करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु तार लीला विलासेर प्रथम থেকে একাদশীর উপবাসের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তার ভক্তি সন্দর্ভে স্কন্দ পুরাণের একটি উদ্ধৃত দিয়ে বলেছেন যে মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করেন সে মাতা পিতা ভাই ও গুরু হত্যাকারী, এবং সে যদি বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হয় তবুও তার অধঃপতন হয়। একাদশীর দিন শ্রী বিষ্ণুর জন্য সবকিছু রন্ধন করা হয়, এমনকি অন্ন এবং ডালও, কিন্তু শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সেদিন বৈষ্ণবদের বিষ্ণু প্রসাদ গ্রহণ পর্যন্ত করা উচিত নয়। মানে वो वाला चीज नहीं ग्रहण कीजिए, एकादशी चीज बनाकर भोग लगा के ग्रहण कीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से लीजिए। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে নিবেদিত প্রসাদ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না, কিন্তু একাদশীর দিনে বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের খাওয়া উচিত না। মানে जो नॉन एकादशी वाला है उसको ग्रहण मत कीजिए। यस पंकज बाबू, এটা শস্য দানা নাকি শস্য দানা কি মানেটা কি? গ্রেনস। আচ্ছা, সেই প্রসাদ পরের দিন গ্রহণ করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। ओके, अगले दिन या वितरण भी कर सकते हैं जो एकादशी पालन नहीं करता है। एकादशीर दिन কোন রকম শস্যর দানা এমনকি তা যদি বিষ্ণু প্রসাদও হয় তবুও তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग का क्या विचार है, दूसरे को दे देना चाहिए या खुद के लिए रख देना चाहिए अगले दिन? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, खुद के लिए रख, अगले दिन के लिए रखना हम चाहिए, लोग नहीं अगले दिन देना के लिए चाहिए। रख देते हैं लेकिन लेते नहीं है। दूसरे को देना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मंदिर क्या करता है नरेंद्र सर्व चैतन्य प्रभु? दे देता है। ना मंदिर में तो इतना दे क्या देते होगा, वो क्या करते हैं, मधुकरी करके बाहर में रख देते हैं सब। नहीं, और मंदिर में जो स्पेशल मंदिर जो में है प्रभु उसको जी जो फिर गेट पे दरमान है उसको दे देता है, हम देखे हैं। हम लोग कभी एकादशी में सेवा जाते हैं, राजभोग का जितना रहता है सब निकाल के वो गेट पे रख देते हैं और वो दरमान दे देते हैं। बाहर का बस्ती वाला लोग लोग को दिया जाता है। हाँ, नहीं गेट के पास दौड़ने के बाद रख देते हैं, जो लेना है वो ले ले, जो एकादश नहीं करता है। और हम गोविंदास लोग का खुद- लोग स्टाफ लोग आके लेके नहीं वैष्णव लोग को खुद अपने हाथ में किसको नहीं देना चाहिए, ये अपराध लगेगा। ओ अच्छा, हाथ से मत दीजिए, रख दीजिए, अगर किसी को चाहिए तो ले ले। हाँ अच्छा, जो ले, हाँ वाह। तो प्रसाद छूना मना है, ऐसा क्यों बोला गया है? प्रसाद छूना मना है, कहाँ लिखा है? लिखा तो है চাল চাল ডালের প্রসাদ ওটা ছোঁয়া মানা। हाँ वो वाला जो ग्रेन वाला प्रसाद छूने से अगर आप हाथ धो लिया थोड़ा रह गया फिर बाद में मुंह में चला गया, उसी लिए मना है। ठीक है, यस बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভুজি। প্রভুজি মানে প্রসাদকে রিফিউজ করা চলবে না, একটা প্রমাণ দিয়ে গেছে হরিদাস ঠাকুর, যখন হ্যাঁ, গোবিন্দ জানি, দাস। জানি সে লীলা জানি। হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ, হরে এখন- হরে কৃষ্ণ। এই- আমি এই ওইটাই প্রশ্ন- বলতে চাইছিলাম যে প্রসাদ খাওয়া না খেয়ে রেখে দিই, কিন্তু প্রসাদ অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, Yes, অ্যাকসেপ্ট করা জরুরি আছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो कहाँ थे? মানে আপনি হাতে নরেন্দ্র প্রভু যে বললেন ঠিকই আছে, মানে হাতে আপনি যদি দেন সেটাও অপরাধ, যদি একাদশীর দিনে চালের প্রসাদ हाँ, শস্য। हाँ।
अभी देखिए माँ क्या बोलता है, सची माता क्या बोल रही है, सोची कहे ना खाइबो ভালোই কহিলা, সচি কহে না খাইব ভালোই কহিলা, সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা। আরে সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা। সতী মাতা বলেছিলেন তুমি ভালোই কথা বলে, দেখে অ্যাপ্রিসিয়েট কিয়া। আমি একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করব না, সেই দিন থেকে তিনি একাদশীর उपवास करते शुरू करें। हरी बोल। तो जो लोग यहाँ तो अधिकांश लोग एकादशी करता है, लेकिन इससे क्या शिक्षा मिलता है? এই লীলা থেকে এই শিক্ষা কি শিক্ষা আমরা পেতে পারি? যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি বলতে চাইছেন, যে তোমরা কিন্তু একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করো না। और क्या शिक्षा मिलता है कि महाप्रभु एकादशी को कितना इंपॉर्टेंस देता है। देखिए भगवान कितना इंपॉर्टेंस देता है। और एक क्या इंफॉर्मेशन देता है, देखिए जो सची माता है वो सीनियर है या महाप्रभु सीनियर है? माँ ही तो सीनियर है ना, उम्र से प्लस पोजीशन से। लेकिन उम्र से सीनियर होने के बावजूद जब कोई अच्छा चीज, अच्छा शिक्षा मिला, तो ये भक्त का लक्षण है कि वो तुरंत उसको स्वीकार करेगा। शुभस्व शीघ्रम, भालो जिनिस, वो विचार नहीं करेगा अरे मेरा बच्चा बोल रहे तो क्या फर्क पड़ता है, छोटा बच्चा है। नहीं, जो सही है उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है। ये बुद्धिमान और ये महापुरुषों का लक्षण है, जो अच्छा चीज तुरंत। देखिए महाप्रभु खुद, उदाहरण दीजिए, महाप्रभु खुद एक छोटा बच्चा गोपाल का शिक्षा ग्रहण किया था, साक्षात भगवान, और गोपाल से बड़ा भी उम्र में, लेकिन उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया था। क्यों? क्योंकि वो सही विचार था, सही शिक्षा था, है ना। और उनको गुरु भी बना लिया था महाप्रभु ने, गोपाल गुरु नाम दे दिया, आज से तुम गोपाल गुरु। यस, इंद्राणी माता जी। প্রভুজি আর একটা শিক্ষা দিয়েছেন যে সদবারা আগে করতেন, স্মার্ত ব্রাহ্মণরা বলেছিল যে সদবারা করতে পারবেন একাদশী, বিধবারা। वेरी गुड, हरी बोल, वेरी नाइस। ये तो बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। नहीं, मेरा हस्बैंड अभी भी जीवित है, मैं क्यों एकादशी पालन करूं? वो अभी बहुत लोग नहीं करते, बोलते कि महाप्रभु का भी पिता अभी जीवित थे जब ये लीला हुआ। महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जीवित थे ना, लेकिन फिर भी सची माता ने इसको ग्रहण किया। तो जब भगवान के परिवार में ये चलता है, तो हम और आप कौन सा खेत का मूली, हम लोग को भी ये ग्रहण करना चाहिए। ये जो गलत फहमी है समाज में कि जो सधवा है, माने जिनका हस्बैंड जीवित है, उनको एकादशी नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे पता चलता है। वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। ये सुधामय वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी सुना जाता है कि जो मतलब जिनके हस्बैंड है सुहागन जो लोग हैं, वो लोग को कृष्ण पक्ष वाला एकादशी नहीं करना चाहिए। फिर तो मेंशन ही कर देते प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया, एकादशी लिखा, तो इसका मतलब सब समस्त एकादशी करना चाहिए। तो वो हमसे कई लोग पूछे कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हम बोले नहीं, हम लोग तो सब करते हैं। यस, एकदम बोलिएगा। और प्लस और एक चीज इससे जो इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड है, बहुत लोग बोलते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान, जगन्नाथ के भक्त लोग, भगवान एकादशी ग्रहण नहीं करते, एकादशी को बांध के रखा है। हो सकता है वो भगवान का इंटरनल लीला है, एकादशी को बांध के रखा है जगन्नाथ जी। क्यों बांध के रखा है? क्योंकि जगन्नाथ जी को पसंद नहीं है, जगन्नाथ जी नॉर्मल प्रसाद लेना चाहते हैं, नॉर्मल भोग ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जगन्नाथपुरी में भी जो भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, वो भी एकादशी पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोल सकते कि अरे देखो एकादशी को बांध के रखा है, माने एकादशी कोई क्रिमिनल नहीं, भगवान का बहुत प्रिय है, तो फिर बोल सकते कि बांध के क्यों रखा है? वो भगवान का इंटरनल लीला है, उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग भगवान का जो आदेश है वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण, वो थोड़ा एकादशी का कथा बताइए ना, कौन है एकादशी? एकादशी कौन है? कोई लीला याद है? वो एकादशी कोई असुर को हत्या किया था, तो असुर को भगवान ने बोला था वरदान मांगो, ऐसे कुछ। किसी को लीला याद है? तो बोला था कि ठीक है, एक तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारे दिन भक्त लोग व्रत करेंगे, तुम्हारे जब तुम बार बार आएंगे। किसी को याद है? हर एक महीना में 2 बार तुम्हारा पूजा होगा, इसे वरदान दिया था। राजीव लोचन प्रभु। पूरा तो याद है, शौक में याद है कि भगवान विष्णु के साथ एक बार एक असुर का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लास्ट में असुर भाग गया, तो भगवान विष्णु भी बहुत थक गए और एक गुफा में जाके वो सो गए। तो जब वो सो गए तो असुर फिर उनके निद्रावस्था में मारने के लिए आया। जब मारने के लिए आया तो भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और उस असुर को संहार की। तो भगवान का आंखें खुला तो पूछा कि आप कौन है? तो बोले कि मैं एकादशी।
तब उन्होंने उन पे प्रसन्न होकर बोला कि जो भी एकादशी पालन करेगा उसको मतलब मुक्ति मिल जाएगी और सब प्रकार के पापों से बच जाएगा। हरि बोल, यस। अलग अलग पाप भी दिया हुआ है, गुरु हत्या, गाय हत्या, ब्राह्मण हत्या, कितना बड़ा बड़ा अपराध से व्यक्ति, और सूची खाने से ये सब अपराध लग जाएगा। उल्टा भी देखिए, खाने से आप बोल सकते हैं मैं तो गाय को कभी मारा ही नहीं, लेकिन आप अगर एकादशी में अन्न खाएंगे तो ये सब पाप लग जाएगा। या आप सोचिए गाय हत्या कितना बड़ा। यस, नरेंद्र सर्व चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो पुरी का बात आप बोले, वहां पर महाप्रसाद ले सकता है, वहाँ माने अन्न माने महाप्रसाद अन्न नहीं बोल सकता है, जो पुरी का जो प्रसाद है। तो एकादशी में ले सकता है, लेकिन पुरी में जो रहेगा, जो बाहर हम लोग जा रहा है तो वहां जो सामने में आ गया तो ले सकता है, ऐसे नहीं है। लेकिन जगन्नाथ ने ये लीला किया, जो स्नान यात्रा से जब 15 दिन शरीर खराब होता है, वो 15 दिन बिना अन्न में जगन्नाथ में बिना अन्न में रहता है। तो किसी को यदि वही एकादशी नहीं किया, यदि 15 दिन रह सकता है तो 24 एकादशी का पूर्ण हो जाएगा। ऐसे पालन जो कर सकता है होगा। अच्छा, फिर भी हम लोग नियम है। हाँ, फिर भी हम लोग एक एकादशी को अच्छा से हम लोग पालन करेंगे, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, कलकत्ता में हो। हम लोग वहाँ यदि अगर अन्न महाप्रसाद आपका सामने में आ गया, जैसे हरिदास का सामने में आ गया तो तुरंत वो ले लिया। हाँ, लेकिन हरिदास ठाकुर एकादशी नहीं था, ठीक है, लेकिन हरिदास ठाकुर जो ले लिया था वो एक्चुअली उनका जब खत्म नहीं हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ था कि महाप्रभु महाप्रसाद लेके आए, लेकिन हरिदास ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने अपना जो नियमित जप है वो कंप्लीट नहीं किया था। उसीलिए उन्होंने बोला था कि मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में पड़ गया, इसको अन्न को ग्रहण करे या नहीं करे, वो दुविधा में पड़ गया था। इसलिए नहीं कि उस दिन एकादशी था, लेकिन फिर हरिदास ठाकुर ने क्या किया, एक छोटा ग्रहण के बाकी रख दिया। बाकी क्या बोला, मैं जब अपना कंप्लीट करूंगा जब फिर हम इसको ग्रहण करेंगे। तो वो थोड़ा अलग था। बंकिम प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे प्रभु जी। অ্যাকচুয়ালি বিষ্ণুজি যমরাজ্যে গিয়েছিলেন, গিয়ে ওখানে যমরাজ বিষ্ণুকে অভ্যর্থনা করার সময় ওনার কানে প্রচন্ড চিৎকার চেঁচামেচি একটা শব্দ আছে। তখন বিষ্ণুজি জিজ্ঞাসা করলেন যমরাজকে যে প্রভু এ কি হচ্ছে, বলে মর্তলোকে যারা অতি পাপ করে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তারও উনি ভীষণ মানে দুঃখিত হলেন, বলে সমস্ত জীব সকল কীট পতঙ্গ সব আমার সন্তান, তো এরা এত কষ্ট পাবে কেন, এদের জন্য কি করি। যার জন্য উনি মন থেকে একাদশী বাজার করলেন। করার পরে এবার সুপুরুষ আর কুপুরুষ মানে পাপ পুরুষ এসে ভগবানের পায়ে ধরে যে প্রভু আমরা কোথায় যাব, তা আপনি যদি একাদশী দিয়ে যে সমস্ত পাপ উদ্ধার করে নেন তাহলে আমরা কোথায় যাব। তখন কুপুরুষকে বললো যে পাপ পুরুষকে বললো যে তোমরা একটা কাজ করো, বছরের একদিন বা বছরের দুদিন তোমরা গাছে থাকবে। কোন গাছে, যে গাছে শস্য হয় ওই গাছের মধ্যে থাকবে, আর তুমি কোথাও থাকবে না। যারা একাদশী করবে ওই দিন তুমি বাইরে বেরোও না। हरे कृष्ण प्रभु, এটা আমি বলছি না, এটা আমার ইস্কনে महाप्रभुर বই আছে। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो आइए तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, स्मार्तो ब्राह्मणेरा, स्मार्तो माने स्मार्तो ब्राह्मण का क्या अर्थ हुआ, कौन बता पाएगा। हाँ पंकज प्रभु। बाई बर्थ जो ब्राह्मण है। हाँ, बाई बर्थ। और ये लोग बहुत कट्टर होता है, इन लोग को अधिकार आ देखो मैं जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में, मैं ब्राह्मण हो गया। तो एक्चुअली ब्राह्मण माने ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण, यानी जो भगवान को जानता है। लेकिन इन लोग को क्या लगता है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण हो गया, ऑलरेडी ये गुण मेरे में नहीं। कोई डॉक्टर के परिवार में अगर जन्म लिया कोई बच्चा, तो क्या उसको समाज आकर डॉक्टर बना देगा, सर्टिफिकेट दे देगा, ऐसा है क्या। नहीं। हम लोग इधर क्लास में कोई डॉक्टर है, एक तो है श्याम सुंदर प्रभु और कोई, अच्छा एक जन डॉक्टर है, बंकिम प्रभु डॉक्टर है, ठीक है। तो अभी तो इनका पुत्र को तो फिर कैसे होगा, फिर डॉक्टर का पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर वो डिग्री हासिल करना पड़ेगा, फिर बोल सकते हैं कि वो डॉक्टर है ना। यस। तो स्मार्त ब्राह्मणेरा बोले যে একাদশীর দিন উপবাস করা বিধবাদের অবশ্য কর্তব্য। तो इसका मतलब सदवादन नहीं करना चाहिए।
কিন্তু সদবাদের একাদশী ব্রত পালন করা উচিত নয়। মনে হয় মহাপ্রভু অনুরোধ পূর্বে সচিমাতা একাদশী ব্রত পালন করছিলেন না, কেননা তিনি ছিলেন সদবা। কিন্তু বিধবা না হলেও শাস্ত্র অনুসারে একাদশীর ব্রত পালন করা প্রথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করেছেন। একাদশীর দিন কোন রকম শস্য দানা গ্রহণ করা উচিত না, এমনকি তা যদি বিষ্ণু প্রসাদও হয় তবুও গ্রহণ করা निषेध। देखिए प्रभुपाद एकदम क्लियरली लिख दिया, प्रभुपाद जगन्नाथपुरी ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा, क्लियरली पूरा लिख दिया प्रभुपाद जी। ओके, अगला श्लोक। यस बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ এটা শিবাশ্র ব্রাহ্মণ ছিল, শিবাশ্র ব্রাহ্মণ ছিল, 17 বছর তো কোনো ব্রাহ্মণত্ব করেনি, কোনো পূজা পাঠ কোনো কিছু করেনি। कुछ भी सुनने से तो शिवाज ब्राह्मण वर्ड सुन के उनको हरे कृष्ण, ठीक है जी शिवम। एनीथिंग क्लिक्स बाय हियरिंग एनी फ्रेज वर्ड। ओके, 11 नंबर श्लोक। तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया যৌবন, তবে বিশ্বরূপে দেখিয়া যৌবন, কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন। कन्या चाहे विवाह देते करिलेन मन। ये विश्वरूप के लिए बोल रहा है, ठीक है। विश्वरूप सुनी घर छाड़ी पलाइला, विश्वरूप শুনি ঘর ছাড়ি পালাইয়া, সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা, সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা। শুনি শচী মিশ্রের দুঃখী হইল মন, শুনি শচী মিশ্রের দুঃখী হইল মন। তবে প্রভু মাতা পিতার কইল আশ্বাসন, তবে প্রভু মাতা পিতার কইল আশ্বাসন। विश्वरूप যৌবনে मान যৌবনে पदार्पण। तो विश्वरूप सोचिए इधर निमाई कहाँ है, पौगंड में है, और विश्वरूप যৌবন में है। तो इससे पता चलता है कि दो भाई में कितना उम्र का फर्क है, 7-8 साल का होगा। विश्वरूप যৌবনের पदार्पण माने जस्ट যৌবন हुआ, माने যৌবন माने जस्ट 15 हुआ ना, 15 या 16 ऐसे कुछ। দেখে জগন্নাথ মিশ্র উপযুক্ত কন্যা দেখে তার বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন। সেই কথা শুনে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন। क्योंकि सन्यासी लोग का नियम है एक स्थान में नहीं रह सकते आप ज्यादा देर, कुछ 3 दिन या 2 दिन ऐसे भी लिखा हुआ है, एक स्थान में मैक्सिमम इतना ही टाइम आप बिता सकते हैं। তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কথা শুনে সচিমাতা জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাদের আশ্বাস দিলেন। ভালো কহিল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল, ভালো হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল, পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল। মহাপ্রভু বললেন, হে মাতো, হে পিত, বিশ্বরূপ বা যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে তাতে ভালোই হয়েছে, কেননা তার ফলে সে তার মাতৃকুল ও पितृकुल দুই उद्धार करालो। देखिए महाप्रभु आश्वासन दे रहा है। क्यों आश्वासन दे रहा है? क्योंकि गुस्से में माता पिता बहुत अपराधजनक बात बोल सकता है, प्लस माता पिता दुखित रहेगा। हाँ, एक पुत्र चला गया तो दुखित रहेगा ना, तो माता पिता को दुख देना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए डैमेज कंट्रोल कर रहा है कौन? गौरांग महाप्रभु। কেউ কেউ বলে যে শাস্ত্রে কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করা অনুমোদন করেননি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম দেবরেণ সুতোৎপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েত। কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমের যজ্ঞ ও সন্ন্যাস গ্রহণ, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন, এই 5টি প্রথা নিষিদ্ধ। इसका मतलब आगे ये 5 अलाउड था, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সন্ন্যাস অনুমোদন করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ভালো হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল, পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল। তাহলে কি আমাদের মনে করতে হবে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করিলেন? না, প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেননি।
ভগবানের সেবায় সর্বতভাবে নিজেকে নিয়োজিত করার যে সন্ন্যাস তা অনুমোদিত করেছেন এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা, কেননা সেই প্রকার সন্ন্যাস গ্রহণ করার ফলে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের জন্য সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হয়। তবে মায়াবাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যা হচ্ছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমরা দেখতে পাই বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী নিজেদের ব্রহ্ম অথবা नारायण बोले मने करे रास्ता रास्ते घुरे बेड़ाচ্ছে। आप लोग देखते हैं सुबह सुबह एकदम दुकान दुकान जाते भीख मांगते हैं এবং সারাদিন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে যাতে তারা তাদের ক্ষুধার সময় উদারপূর্তি করতে পারে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা এই এতই অধঃপতিত হয়েছে যে তারা একটি গোষ্ঠী কুকুর শূকর আদি সবকিছুই খায়। হরে কৃষ্ণ। এই ধরনের অধঃপতিতকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের সন্ন্যাস প্রথা অত্যন্ত কঠোর ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তথাকথিত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসী হওয়া মানে নারায়ণ হয়ে যাওয়া এই ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাবে অধঃপতিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ধরনের সন্ন্যাস বর্জন করেছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাস হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্মের একটি অঙ্গ, সুতরাং তিনি তা বর্জন करें बा करबें की करे। तो उन्हें नेगेटिव महाप्रभु नेगेटिव वाला जो सन्यास है वो मना किया है, शास्त्र में वो भी मना है। कलयुग में नेगेटिव वाला सन्यास एकदम अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें तो इससे क्या होगा, इससे तो कलयुग और डिग्रेड होगा। उसीलिए कलयुग में ये सब मना है, ये नेगेटिव वाला सन्यास। शुद्ध कलयुग में क्या, कोई भी युग में मना है। ठीक है, यस बोलून प्रभु কিছু প্রশ্ন থাকে ভালো হয় না। প্রশ্ন যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীটা কি? আমি তো মহাপ্রভুর সন্ন্যাসটা দেখলাম মানে কলিযুগে অ্যাকসেপ্টেড মানে অ্যালাউয়েবল, কিন্তু যেটা মায়াবাদী আশ্রম সন্ন্যাস যেখানে 5টা পাপের মধ্যে একটা পাপকে মানে ইয়ে করা হয়েছে, সেটা কি? সেটা কি? প্রশ্ন উত্তর শোনার জন্য প্রশ্ন করেছেন না উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করেছেন? না, উত্তর শোনার জন্য প্রশ্ন করেছি। তো এটা তো প্রভুপাদ এতক্ষণ বললো মায়াবাদী সন্ন্যাসী, এই তো এই তাৎপর্য তো বড়, আমি তো বললাম না। ওই মায়াবাদী একটাই তো সন্ন্যাস আছে যেটা আমাদের 4 আশ্রমের সন্ন্যাস, ওই সন্ন্যাসের কথা বলা হচ্ছে তো মায়াবাদী না আলাদা কিছু? মায়াবাদী সন্ন্যাস মানে কি তো বলা হইলো না, এখনই তো আমি বললাম। প্রভুপাদ বলছেন যে মায়াবাদীরা মনে করেন না বাবু, আমি কি বলছি যে আমাদের যে 4 আশ্রম, আমার কান পরিষ্কার, আমার মেমোরিও খুব শার্প, আমি শুনেছি কি বলেছেন, কিন্তু এটা আমি জানি আপনি উত্তর শোনার জন্য বলেননি, সেটা আমি ভালো করে জানি। কারণ কি, যদি উত্তর শোনার জন্য জানতেন তাহলে প্রভুপাদ এক্ষুনি উত্তর দিয়েছেন, তাহলে এটা প্রশ্নটা করতেনই না। যদি ভালো করে শুনেছেন, প্রভুপাদ বলছেন যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী হচ্ছে তারা মনে করে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তারাও নারায়ণ হয়ে যাবে, এই জন্য তারা ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে ভিক্ষা করে বেড়ায়। और क्या ऐसा तो अभी जस्ट पढ़ा मैंने, এই ধরনের অধঃপতিত সন্ন্যাস গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, इसीलिए कलयुग में सन्यास को मना किया है। क्यों? क्योंकि मालूम है प्रभुपाद जी को और कलयुग के भगवान को भी मालूम है कलयुग में क्या होगा, लोग इसका गलत फायदा उठाएगा। और हम लोग देखते हैं ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सब हावड़ा में मीटिंग होता है सुबह 6 बजे, सब गांव से आता है हावड़ा स्टेशन में। अगर आपको देखना है तो जाकर ये सब लाइव दे सकते हैं, और फिर उन लोग फिर फैल जाता है, 7-8 बजे सब फैल जाता है, सब एक लोग एक एरिया पकड़ता है और दुकानों में जाकर भीख मांग के वो 12-1 बजे सब बीड़ी पीता है। सब देखिएगा, ये तिलकधारी को क्या बोलते हैं, और्ध्वपुंड्र ना, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला तिलक को त्रिपुंड तिलक लगाकर सब घूमता है और भीख मांगता है। उन लोग बीड़ी सिगरेट पीता है, उन लोग मांसाहार भी करता है, ऐसे ही चल रहा है। ये तो पूरा, अब आपको मेरा बात अगर कंफर्म करना है तो आप देखिए हावड़ा स्टेशन जाकर सुबह इन लोग का सब मीटिंग पॉइंट होता है। हावड़ा स्टेशन सब अलग अलग दूर बारासात यहाँ वहाँ सबसे आता है, सब जगह से आता है, आकर सब हावड़ा में मीट होता है, फिर इन लोग का डिवीजन होता है, तुम इधर, तुम इस एरिया, तुम इस एरिया, सब अलग अलग एरिया का है सब जगह में, सब एरिया में। अभी तो पड़ोसी लोग भी सन्यासी बन रहा है। ठीक है, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী।
এখানে পদম ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরে হরে